channel. Welcome to everyone to this Khushi's world. I hope you all are doing good. So, I'm also fine here. Today, I am gathered here to tell you something about motivation. Hmm? Because if you are thinking of something, अगर आप सोच रहे हो, you are thinking that I have to speak, I want to be fluent in English. So what you should do? I'm not going to give you any tips. मैं ऐसा कोई tips नहीं देने वाली हूँ आपको ना मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, आप ये मत पढ़ो. No, guys. You all are well known of English. You knowing that you all are knowing that English is a language. You have to speak more and more and more. This is the recap that I am going to tell you in the videos. I'm just going to give you motivational quotes. Today I'll explain some motivational quotes. It will helpful. ये आपको हेल्प करेगा कि अगर आप यू आर गेटिंग डिमोटिवेशन दैट व्हाई आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे पता तो है, आई नो, बट आई एम अनेबल टू प्रोड्यूस इट. मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ. आई एम स्कैर्ड. मतलब मुझे डर लगता है. आई एम फीलिंग हेजिटेशन. मुझे हेजिटेशन होता है कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ. क्यों, जबकि मुझे पता है आई कैन रीड इट क्लियरली. I can think, means मुझे पता है. I know each and every minute detail of English. I have depth the knowledge of grammar as well. But the problem is that I'm unable to speak. So if you have to speak, you have to boost up your conversation skill. What you should do? Hmm? You should practice. The most important thing is that you have to practice more and more and more and more. Because practice makes a person fluent. If you want to practice now, the first thing you should do that you have to go step by step. First step, second step, third step. First step, it should be read. Like if you have to learn, you have to understand the thing. What you should do, you should read. First, what you do, if you are listening any stories, if you want to keep in your mind, what you do, the first thing that you are reading it now. If you're listening, then it is okay. But before that, what you should do, you should read it. Hmm? You know, जब हम पहले होते थे, पहले के लोग क्या कहते थे, जितना आप बोल के पढ़ते हो ना, उतना चीजें आपके दिमाग में स्थिर होती है, कंट्रोल होता है आपको, उतना वो आपके माइंड में सेट होती है चीजें. सो लाइक दैट ओनली. इफ बिकॉज इफ यू रीडिंग समथिंग, आप कुछ पढ़ रहे होते हो, तो वो प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होती है. बोलने से हमारे वोकैब्स पे, हमारी जो भी हम पढ़ रहे हैं, वट एवर वी आर रीडिंग, विल गेट क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. हाँ, हमें उस चीजों को समझ में आता है. It's not about that I'm like that you don't have to read. No, just see the details. One word you have to read. You read it, you see that what's going on. Means क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है उसको पढ़ने में. जब आप अपनी चीजों को खुद से देखोगे ना, खुद से आप उस चीज को देखोगे कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या वहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या होने चाहिए, वो जो वोकैब्स उसका मतलब क्या होता है. जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, if you are reading anything na, like word, if you'll get some word self respect, so you will try to find out what is the meaning of self respect. If you are getting any creed, so try to find out what is the meaning of creed. So it will help you to boost up. ये आपको boost करने में help करते हैं. You will get to know that no, if I am reading this na, then this is the meaning of this is that. It will get clarification in your mind subconsciously. You don't have to learn the thing. आपको उस वक्त पढ़ याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप उसे बोल रहे हो ना, जब आप उसको प्रोनाउंसिएशन के रूप में कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो वन बाय वन आपके माइंड में खुद आते जाएगी. जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसमें आप क्या करोगे, जाके डिक्शनरी देखोगे, डिक्शनरी में उसका वर्ड फाइंड आउट करोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को लेटर बाय लेटर आप बोल के देखोगे, तो चीजें वही क्लियर हो गई ना आपको. उसके लिए अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आपको याद करना होगा इस वोकैब्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन आ रही है तो उसका मीनिंग क्या है, वो एक के बाद एक होते चला जाएगा आपका. सो ये तो फर्स्ट थिंग थी. सेकेंड क्या होता है, लिसनिंग. जब आप बातें करते हो, लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू यू, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू, व्हाट आई शुड फॉलो, मुझे क्या फॉलो करना चाहिए कि मैं आपकी बातों को पूरे ध्यान से सुनूं. लिसनिंग जिसे कहते हैं ना, लिसनिंग. सो आई शुड लिसन टू यू, मुझे आपको सुनना चाहिए. मैं जितना ध्यान से आपको सुनूंगी ना, जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वो बिल्कुल आपकी बात पे होगा. और जब मैं आपकी बातों को मतलब आराम से मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल केयरफुली आई एम लिसनिंग टू यू,
तो आप जो कहोगे वो सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे अलग से इसमें मेहनत नहीं करनी है कि मुझे बार बार वो रिपीट नहीं करनी है कि अरे आपने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। क्योंकि जब आप बातें करते हो ना, आप सुन रहे हो उनकी बातों को, आप ध्यान दे रहे हो उनकी चीजों पे, तो आंसर ऑटोमेटिक निकलता है, इट्स ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो आपको अलग से उसमें मेहनत नहीं करनी होती है। तो लिसनिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपको उसमें बहुत ध्यान देना होता है। आप चीजों को सबसे पहले रीड करो, रीड लाउडली, स्क्रीमिंग नहीं करनी है आपको, लाइक नो आई हैव टू रीड, लाइक दैट यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू रीड लाइक पीसफुली, यू जस्ट रीड इट। आप उसको पढ़ो, जितने ध्यान से आप उसको पढ़ोगे बोलोगे तो प्रोनाउंसिएशन स्किल इंप्रूव होगी, वोकैब्स पे स्ट्रांग होगा आपका, उस पे पकड़ बनेगी। दूसरा चीज मैंने क्या बोला, व्हाट डिड आई से, लिसनिंग। आप जब उसको सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इन्होंने ये बोला, सो व्हाट्स द मीनिंग, इसका मतलब क्या निकलता है। आप ध्यान से सुनोगे, यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू, द मेथड, दैट प्रैक्टिस। आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्रैक्टिस, उसके बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप रीड कर लोगे, जब आप सुन लोगे उस चीजों को, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, अब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। एंड द बेस्ट थिंग कि प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, यू फर्स्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ। आप अपने आप से बात करना शुरू करो। नो नीड, आप मत बोलो कि यार तुम मेरी हेल्प कर दो, तुम मेरी हेल्प कर दो, यू डोंट गो देख, आप किसी वीडियोस को देखो, आप कोई लेक्चर को सुनो, नहीं। अब फर्स्ट प्रैक्टिस, क्योंकि देखो आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, कि बाय लिसनिंग टू अदर्स यू कैन, आप समझ सकते हो उसे, यू कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट विल कम आउट, बिकॉज व्हेन यू विल स्पीक, ये तभी बाहर आएगा ना जब आप बोलना शुरू करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप बोलना शुरू करते हो। एंड फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो प्रैक्टिस। लाइक आप, यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, see you just take this mirror and you start speaking. It will be helpful. I also did the same thing. Hmm? So what you have to do, you have to stand in front of the mirror and you start questioning yourself. You start simple question, you ask first, you start asking simple question, what is your name, where do you live, where do you go, who is your father, what your father do, like that you start asking to yourself. आप अपने आप से जब पूछना शुरू करोगे ना, एंड यू विल हैव टू आंसर, एंड यू आंसर विद द सेम, आप सेम आंसर भी दो वहां पे। लाइक जब आप कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे ना अपने आप से, तो ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल देगा, आपको भरोसा होगा कि नो, आई कैन डू इट। आप बोलना शुरू करोगे, आप आंसर देना शुरू करोगे, तो उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि हाँ देयर आई एम लैकिंग, कहाँ पे आपको किस चीज की कमी हो रही है, वो आपको उससे पता चलेगा। ओके गाइस, सो आई होप दिस थ्री टिप्स will help you to improve your English। हाँ, आप प्लीज इसे फॉलो करो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो, क्योंकि लाइक इंग्लिश इज, आई एम नॉट टेलिंग दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल, कि इंग्लिश के बिना आपकी लाइफ नहीं चल रही, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट that's true, English gives the better opportunity। When you are going to any corporate sector now, and if you are trying to express yourself, the best personality is showing that you are speaking in English. I'm telling you guys that there you have to understand that if you're speaking in English and they are contracting with you, they are contacting, they are getting closer to you, they will understand, huh, this is like personality improvement। आप जब बोलते हो ना, तो वो उसे दिखता है कि आपके अंदर कितने है, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली इस चीज को रख रहे हो। हिंदी ये नहीं है, इनफैक्ट आप हिंदी इज आवर मदर टंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट एवरी टाइम एवरीवेयर यू विल स्पीक हिंदी, नो। Nowadays English plays a vital role in your personality build-up। आपके पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सो प्लीज गाइज, जस्ट connected with me and do watch, read aloud, listen and practice more and more। Okay guys, I hope it will be helpful for you. Thanks for watching. And guys, if you're new to my channel, kindly subscribe it, like, share and share it with your friends. These 3 or 4 tips, whatever I told you, it will be helpful for you। And if you share this video, they will also get some knowledge। So please take care. Bye bye. Good night.